Hello students. So today we have to discuss about the chapter 4, which is reproductive health, and today is 6th of May. So to start this topic, which is reproductive health, I want to tell you about the meaning of reproductive health as well as the problems and strategies which are related to the reproductive health. So here I have prepared a little note for covering this topic. So you can see that what reproductive health means too. Actually it means a total well-being in all aspects. Students, please keep your attention that what is written to define the reproductive health. It's actually not the definition of health where you have studied that well-being people or human being which is fit from social, physical or mental. But here to define the reproductive health, individual should be reproductively fit. So how the reproductively how the people be fit reproductively? It could be physical, emotional and behavioral and social. So this could be called as the reproductive health. It means a total well-being in all aspects of reproduction. That is what reproduction, what aspects are there which may include the reproduction. These are: first is physical, second is emotional, and third one is behavioral and social. These all are the aspects in which people should be well-being to called reproductively fit. So below this I have covered the next topic, which is the problems related to the reproductive health. So you can see that what problems are they could be. So here I have mentioned the 4 different problems which could be the part of reproductive health. First is there is little knowledge of personal hygiene. People don't know or are not aware about the reproductive processes or reproductive organs. So this cause sexually transmitted diseases. That's why a number of diseases such as gonorrhea, syphilis or AIDS could be transmitted from one person to another because of the little knowledge. Second is early marriages lead to high maternal and infant mortality rate. Students, not now, but in rural areas, people marry the childs in early ages, so it may cause the high maternal and infant mortality rates. Third one is due to lack of awareness, there has been a rapid increase in population size. People are not using the contraceptive devices, so that's why the number of people is increasing day by day. Fourth one is people believe in myths and misconceptions about sex related issues. A number of myths are there in our society related to the reproductive organs or reproductive processes. Actually they don't know about them, so that's why they believe on them, on misconceptions or the myths which are related to the sexual issues. So moving ahead, I have covered the topic related to the strategies which are based on the which are prepared by the government or the other peoples related to the reproductive health. So you can go through the strategies which we have planned for covering the reproductive health. First is family planning programs. So family planning programs were initiated not now, it is actually from the 1951 1951 से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, इनिशिएट किया गया. सेकेंड, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड इन 1997. क्यों लॉन्च किए गए? फर्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्या रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनको जागरूकता प्रदान करने के लिए. दूसरा, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, एक समाज को तैयार करने के लिए उनको सुविधाएं और सहायता प्रदान की गई. किसके अंतर्गत? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत. थर्ड, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स
now you can see on TV or on YouTube, or a number of channels are there where you can see the number of awareness related program related to the reproduction एंड प्रिंट मीडिया। आज के समाचार पत्र में भी, ये मैगजीन्स में भी हम देखते हैं बहुत सारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रिंट्स हमें मिलते हैं वहाँ पे। बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट NGOs आर देयर, जो कि बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लॉन्च करती हैं या डिटरमाइन कराते हैं। आर engaged in creating awareness among people about reproduction related aspects। तो ये तीसरी स्ट्रेटजी है जो हमारे सोसाइटी में बहुत तेज़ी से काम कर रही है, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो। चौथे नंबर पे स्ट्रेटजी पे पहुंचते हैं। इनकरेजिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। टीचर्स आर टीचिंग द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द सेक्स एजुकेशन बिकॉज to give right information to young minds and save them from myths। जो अभी हमने प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, जो सेक्स रिलेटेड मिथ्स हैं, जो मिथ्याएं हैं, जो दोस्त लोगों ने फैला के रखा है हमारे समाज में, और जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फिफ्थ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, safe and hygienic sexual practices and sexually transmitted diseases should be given। तो यहाँ पे जो पांचवी स्ट्रेटजी है, इसमें लोगों को सूचना दी जाती है किससे, STDs से रिलेटेड या सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, और एडोलेसेंस के बारे में जो चेंजेस आपने देखे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करा रही हों या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करा रही हों। सिक्स्थ स्ट्रेटजी में एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। तो आपने देखा है कि बहुत सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, चाहे वो सर्जिकल मेथड्स हो या फिजिकल मेथड्स हो या नेचुरल मेथड्स हो, अभी हम इस चैप्टर में ही आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स लोगों को अवेलेबल कराए जा रहे हैं। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, किस तरीके से गर्भवती में माँ की केयर, देखभाल की जाए। पोस्ट नेटल केयर, या जन्म के बाद किस तरीके से मदर की और बच्चे की केयर की जानी चाहिए, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, आप सब जानते हैं। कोलेस्ट्रम होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है यंग वंस में, जो कि बहुत ज़रूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। आप सब जानते हैं कि मेल या फीमेल चाइल्ड की इक्वल चांसेस होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं, क्योंकि इन दो के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कि लोगों में मिथ्स हैं, मिथ्याएं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो उनको जागरूकता प्रदान कराई जा रही है इन सब स्ट्रेटजीज़ को तैयार करके। तो सेवेंथ जो स्ट्रेटजी है आप देखिए, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड है। चूँकि ये लोगों को इसके बारे में बहुत नहीं पता है कि जनसंख्या घनत्व के होने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो उनको इस रिलेटेड अवेयरनेस भी प्रोवाइड कराई जा रही है। एंड सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में, चाहे वो सेक्स एब्यूज़ हो या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हों, सूचनाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं पीपल्स तक। एट्थ, और ये स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एमनियोसेंटेसिस। मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटजी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्यों होती है? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक। यहाँ पे इलीगल ये नहीं है, इलीगल था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इंक्रीजिंग फीमेल फर्टिसाइड, तो ये एमनियोसेंटेसिस क्या इंक्रीज करता है? फीमेल फर्टिसाइड्स। गर्भ में ही फीमेल चाइल्ड की हत्या को फीमेल फर्टिसाइड्स कहते हैं। पीपल्स को पता चल जाता है सेक्स क्या है बेबी का, और फीमेल होने पर वो गर्भ में ही बच्चे को ख़त्म कर देते हैं। क्या है एमनियोसेंटेसिस? अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन द टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोम पैटर्न इन सेल्स फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? वो फ्लूइड जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है, या डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड करने वाला यूटेरस में जो फ्लूइड है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और उस फ्लूइड के क्रोमोसोमल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बेबी के सेक्स को बताया जा सकता है।
अब बेबी का सेक्स या डेवलपिंग चाइल्ड का सेक्स अगर फीमेल होता है तो वो फीमेल फर्टिसाइड्स हो जाता है या उस गर्भ को गर्भपात करा दिया जाता है फीमेल या मेल के द्वारा। तो इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से स्टैचुटरी बैन बंद कर दिया है। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे पूरा कवर किया और इसके आगे जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन नेक्स्ट वीडियो।